کہ جس نے ان دنوں میں اعتکاف کیا گویا یوں سمجھو کہ اس نے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب حاصل کر لیا۔ تو جو عورتیں جو مستورات ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ وہ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ماہ مقدس چل رہا ہے اور دن بدن اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ تو اس ماہ رمضان کے اختتام پر اس کے آخری عشرہ میں مسلمان اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ اسی اعتکاف کے بارے میں ہم حضرت علامہ مولانا مفتی قاسم صادق چشتی صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اعتکاف کا سنت عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کیا ہے، اور قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا ذکر موجود ہے، اور اس کے جو معتکف لوگ جو اعتکاف کرتے ہیں وہ کن چیزوں کا خیال رکھیں۔ ان سب باتوں کے بارے میں آج ہم مفتی صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب، سب سے پہلے ہمارا جو پہلا سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ اعتکاف کہتے کس کو ہے، اس کے بارے میں ذرا ہمیں گائیڈ کریں۔ جی محترم، آپ نے پہلا سوال کیا ہے اعتکاف کے بارے میں کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اعتکاف کا ہم معنی بتائیں گے آپ کو۔ اعتکاف کا معنی ہے ٹھہر جانا، اور اصطلاح شریعت میں عبادت کی غرض سے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں ٹھہرا لینا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ مردوں کے لیے مسجد میں ٹھہرنا اور عورتوں کے لیے گھر میں ٹھہرنا جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں، اس کو اعتکاف بولتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، دوسرا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ کیا قرآن پاک میں اعتکاف کا کوئی ذکر موجود ہے؟ جی بالکل بھائی، اعتکاف کا ذکر قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ موجود ہے۔ آپ کو نمونہ کے طور پر سورۃ البقرہ شریف پارہ نمبر 1 سے ایک آیت مبارکہ سناتا ہوں۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ رب العزت جل شانہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والتسلیم جب دونوں باپ اور بیٹا کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو جس وقت وہ تعمیر کر رہے تھے تو اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ قرار دیا، اور ساتھ جس جگہ پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کھڑے ہو کر اس کی دیواریں بنا رہے تھے، تو اس جگہ کو اللہ رب العزت جل شانہ نے فرمایا اس جگہ کو تم مصلی بنا لو، وہاں پر آ کر نماز پڑھو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ پھر اللہ فرماتا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے یہ عہد لیا، وعدہ لیا، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، کہ میرے گھر کو وہ پاک کریں، یعنی کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ شریف کو پاک کریں۔ کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، جو لوگ آئیں گے طواف کریں گے اس گھر کا، ان کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے اس گھر کو صاف ستھرا کریں۔ اور اسی سورۃ البقرہ شریف پارہ نمبر 2 میں ہے، اللہ رب العزت جل شانہ جہاں پر روزوں کا ذکر کرتا ہے، رمضان کا ذکر کرتا ہے، وہاں پر آخر میں فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھنے والے ہو۔ تو میرے بھائی، یہ تو قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہو گیا کہ اعتکاف صرف امت محمدیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ امت محمدیہ سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں، تقریباً اکثر امتیں، ان میں یہ اعتکاف والی عبادت تھی۔ طریقے اگرچہ مختلف تھے، عبادت یہ ضرور موجود تھی، جس طرح کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والتسلیم کو حکم دیا گیا کہ میرے گھر کو صاف ستھرا بھی کریں، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے۔ اچھا مفتی صاحب، کیا احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف کی فضیلت کا ذکر موجود ہے؟ جی محترم، اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں بہت
ज़्यादा कसीर अहादीस मौजूद हैं। एक हदीस मुबारक आपको सुनाता हूँ। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ किया तो फरमाया गोया यूं समझो उसने 2 हज और 2 उम्रे का सवाब पा लिया। तो रमज़ान के आखिरी अशर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी रमज़ान शरीफ आए, हर रमज़ान शरीफ में आप एतिकाफ बैठते थे। तकरीबन रोज़ा 2 हिजरी को फ़र्ज हुआ, सन 2 हिजरी को। तो आपकी ज़िंदगी मुबारक में 8 मरतबा रमज़ानुल मुबारक आया। तो आपने 8 रमज़ानुल मुबारक में रोज़े भी रखे और आपने एतिकाफ भी किया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपका तरीका, आपका बैठना ये भी साबित करता है कि सुभान अल्लाह, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। और फिर आपने अपनी ज़ुबान मुबारक से भी इरशाद फरमा दिया कि जिसने इन दिनों में इत्काफ किया गोया यूं समझो कि उसने 2 हज और 2 उम्रों का सवाब हासिल कर लिया। इसके अलावा भी बहुत सी अहादीस मुबारक मौजूद हैं। तो इत्काफ की बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी सआदत वाले हैं। अच्छा मतलब बात ये है कि मर्द जो है वो तो मस्जिद में इत्काफ करेगा, जी तो जी जो औरतें हैं, जो मस्तूरात हैं, उनके बारे में इरशाद फरमाएं कि वो किस जगह इत्काफ में बैठे। जी, बहुत अहम सवाल आपने पूछा। ये इंतहाई ज़रूरी सवाल है। मर्दों के लिए एतिकाफ मस्जिद, जामे मस्जिद का होना ज़रूरी है। एतिकाफ के लिए जामे मस्जिद का मतलब ये है कि जहाँ पर 5 वक्त बाजमात नमाज होती हो, ठीक है, वहाँ पर मर्द जो है एतिकाफ बैठे ताकि वो 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ने की शहादत हासिल कर सके। क्योंकि जमात के साथ नमाज पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, तो वो उससे न छूटने पाए। अगर दूसरी किसी मस्जिद, आम मस्जिद में बैठेगा जहाँ बाजमात नमाज नहीं होती 5 वक्त की, तो क्योंकि वहाँ जमात उसकी रह जाएगी, इस वजह से उलमा ने फरमाया जामे मस्जिद में बैठे ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक फरमा। और औरत जो है वो घर में एतिकाफ बैठे जहाँ पर वो नमाज पढ़ती है, तो औरत के लिए मस्जिद वही है। मस्जिद से मुराद सिर्फ ये नहीं कि जो हम मस्जिद बना लेते हैं ख़ास कोई जगह पर, मकाम पर। मस्जिद का मतलब होता है सजदे की जगह। तो जहाँ नमाज पढ़ो सजदे की, इस वजह से हदीस मुबारक में भी आता है ना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए, मेरे लिए सारी ज़मीन को मस्जिद बना दिया गया। क्या मतलब, जहाँ भी चाहे मेरी उम्मत का कोई भी फर्द नमाज पढ़ सकता है पाक जगह पर, जहाँ कहीं भी हो। सारी की सारी ज़मीन मस्जिद है, सजदे की जगह है। तो औरत के लिए घर में जहाँ पर वो नमाज पढ़ती है वहाँ पर क्या है, एतिकाफ में बैठे, उसके लिए बेहतर यही है। और तो और रहा, औरत के लिए नमाज पढ़ना है तो वो भी मस्जिद में ना पढ़े बल्कि घर में पढ़े। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए औरत मर्द तो आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं तो उनको सवाब मिलता है, जमात का 27 नमाजों का सवाब मिलता है, तो क्या हम अगर आपके पीछे पढ़ें तो क्या हमें भी 27 का सवाब मिलेगा कि नहीं? सरकार दो आलम ने फरमाया कि औरतों तुम घर में पढ़ो, तुम्हें वहां पर सवाब मिलेगा। अर्ज करते हैं कि हुजूर हम अगर जमात का सवाब हासिल करना चाहें तो फिर? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर तुम घर के सहन की बजाय कमरा में पढ़ो। अर्ज करते हैं कि हुजूर जमात की फजीलत भी हमने पा ली, लेकिन आपके पीछे पढ़ने की फजीलत तो नहीं हासिल कर सकेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर ये फजीलत हासिल करना चाहती हो तो फिर कमरा की के तह खाने में जाकर नमाज पढ़ो। फरमाया ये मेरे पीछे नमाज पढ़ने से भी अफजल है। तो जिस तरह औरत के लिए नमाज घर में पढ़ना अफजल है, इसी तरह औरत के लिए जो अब एतिकाफ बैठना चाहती है तो एतिकाफ भी क्या है, वो घर ही में होना चाहिए। एक्चुअली मुफ्ती साहब अगला हमारा सवाल ये है कि एतकाफ जो है उसकी अकसाम कितनी है, कितनी तरह का एतकाफ किया जाता है। जी मोहतरम, आपने एतिकाफ की अकसाम के बारे में पूछा है, तो अर्ज करता चलूँ, एतिकाफ की 3 किस्में हैं। एतिकाफ वाजिब, एतिकाफ सुन्नत मुअक्कदा, एतिकाफ नफल।
एहतिकाफ वाजिब कौन सा होता है? एहतिकाफ वाजिब मेरे भाई ये होता है कि कोई आदमी मन्नत मान लेता है कि मेरा फला काम हो जाए तो मैं अल्लाह के घर में 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जितने भी दिन मुकर्रर करे, इतने दिन के लिए मैं अल्लाह के घर में एहतिकाफ में बैठूंगा। तो अब ये एहतिकाफ में बैठना उसके लिए वाजिब हो जाएगा। क्यों? कि उसने मन्नत मान ली, तो अब मन्नत का पूरा करना वाजिब है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में पारा नंबर 17 में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शानहू ने फरमाया वल यूफू नुज़ूरहुम, और चाहिए कि मुसलमान अपनी मन्नतों को पूरा करें। तो कुरान पाक में जो हुक्म दिया जाता है वो फर्ज या वाजिब होता है, तो इस वजह से मन्नत वाला जो एहतिकाफ है वो वाजिब है। नंबर 2, एहतिकाफ सुन्नत मुअक्कदा। ये कौन सा है? रमजान अल मुबारक के आखिरी आशरा में, आखिरी 10 दिनों में 21 चांद से लेकर चांद के ख़त्म होने तक, शवाल का चांद नज़र आने तक मस्जिद में बैठना रमज़ान मुबारक में, ये एहतिकाफ सुन्नत मुअक्कदा है और सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया है। सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया का मतलब ये है कि अगर मोहल्ला में से, बस्ती में से एक आदमी भी अगर बैठ जाएगा तो बाकी बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, अगर एक भी नहीं बैठेगा तो सब गुनहगार होंगे। और तीसरी किस्म है एहतिकाफ की नफली एहतिकाफ क्या होता है कि जब भी आप मस्जिद में आए, अल्लाह के घर में आए, तो आप नियत कर लें नवैतु सुन्नतल एहतिकाफ, मैंने सुन्नत एहतिकाफ की नियत की। तो आप जब भी इधर नमाज पढ़ेंगे, जिक्र अज़कार करेंगे, इसके अलावा आप और भी बैठे भी गई तो फिर वो आपका बैठना भी एहतिकाफ में शुमार होगा, इबादत में शुमार होगा। अगर ऐसे आप आएंगे मस्जिद में बगैर एहतिकाफ की नियत किए हुए, तो फिर अगर आप कोई बात भी करेंगे, कोई काम भी करेंगे या बैठेंगे फजूल, तो वो फिर आपका सवाब नहीं लिखा जाएगा। अगर एहतिकाफ की नियत कर लेंगे तो फिर वो भी सवाब लिखा जाएगा। ये फ़ायदा है नफली एहतिकाफ का। तो एहतिकाफ की 3 किस्में बयान कर दी: एहतिकाफ वाजिब, एहतिकाफ सुन्नत मुअक्कदा और एहतिकाफ नफल। अच्छा जी मुफ्ती साहब, अगला सवाल हमारा ये है कि जो लोग एहतिकाफ में बैठते हैं, यानी जो मोतकिफ एहतिकाफ में बैठा है, उसको किन किन चीज़ों का जो है ना ख्याल रखना चाहिए, इसके बारे में ज़रा रहनुमाई फरमाएं। जी, बहुत अहम सवाल आपने पूछा। मुअत्तकिफ यानी एहतिकाफ बैठने वाला, उसके लिए क्या की चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या लवाज़िमात हैं, क्या शराइत हैं? तो मुअत्तकिफ के लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ मस्जिद ही में रहे, मस्जिद से बाहर ना निकले। और औरत अगर घर में बैठी है तो जहाँ पर वो बैठी है वो वहाँ पर ही रहे, उस कमरे में बाहर ना निकले। अगर मुअत्तकिफ मस्जिद से बाहर निकलेगा तो उसका एहतिकाफ टूट जाएगा, उसको दोबारा से फिर बैठना पड़ेगा। अब उसके अलावा वो, हाँ, एक और बात, एहतिकाफ के लिए रोज़ा भी शर्त है। जो आदमी एहतिकाफ रमज़ान शरीफ के महीने में बैठे, उसके लिए रोज़ा रखना शर्त है। अगर रोज़ा नहीं रखेगा तो फिर भी उसका एहतिकाफ नहीं होगा। और इसके अलावा बीवी से जिमा करना या इस तरह का और काम करना वो मोतकिफ के लिए जायज़ नहीं, मस्जिद से बाहर निकलना भी जायज़ नहीं है। बल्कि इस चीज़ का जिक्र तो कुरान पाक में भी मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। फरमाया अपनी औरतों से मुबाशरत ना करो जब तुम मसाजिद में एहतिकाफ बैठने वाले हो। तो मुबाशरत से तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी मना किया गया है। इसके अलावा मोतकिफ खा भी सकता है, पी भी सकता है, जिक्र अज़कार भी कर सकता है, पढ़ भी सकता है, दीनी कुतुब का मुताला भी कर सकता है, मसाइल सीख भी सकता है, सिखा भी सकता है। कुरान मजीद की तिलावत ये बहुत बड़ी अहम इबादत है, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं। और आपने सवाल नहीं पूछा, बता देता हूँ। अब भाई मस्जिद क्या होती है और एक होती है मस्जिद, एक होती है फनाए मस्जिद। मस्जिद वो जगह होती है जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, चाहे वो मस्जिद का कमरा हो या मस्जिद का सहन हो, ठीक है। बाकी रह गई मस्जिद के इर्द गिर्द जूतियां रखने की जगह, या वुजू खाना है, या पीछे तहारत खाना है,
جو بھی ہے وہ ہے فنائے مسجد شمار ہوتا ہے. تو معتکف کے لیے ضروری ہے مسجد میں رہنا. اگر وہ فنائے مسجد میں بھی بلا ضرورت جائے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ وضو خانے پر بلا ضرورت، ہاں ضرورت ہے، مثال حاجت طبی ہے، انسان کو حاجت طبی ہے، اس نے قضاء حاجت کرنی ہے، جانا ہے، تو اس کے لیے جائے اور پھر واپسی آ جائے، وضو کر کے واپسی آ جائے. وضو کرنا ہے، وضو کی حاجت ہے، خانہ کی حاجت ہے، پیشاب کی حاجت ہے، وہ جائے اور پھر جلدی واپس آ جائے. اور یعنی جتنا ہو سکے وہ مسجد میں وقت گزارے، باہر نہ نکلے. حتیٰ کہ جنازہ پڑھنے کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتا، اگر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور جامع مسجد کی شرط بھی اس لیے لگائی گئی تاکہ جمعہ پڑھنے کے لیے بھی اس کو باہر نہ جانا پڑے، وہ ادھر ہی موجود رہے، کیونکہ مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے. اس وجہ سے یہ تھے کچھ لوازمات آپ کو بتا دیے. اللہ کریم جل شانہ ہمیں اس ماہ مبارک میں اعتکاف کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم ہر مومن مسلمان کو مساجد کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا، آپ کا قیمتی وقت ہم نے لیا، اس پہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اور دوستوں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے نا سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. والسلام.